Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class student. Today date is 4 August 2021 and I am teaching you chapter number 6. The name of the chapter, Birds Our Feathered Friends. Name of the chapter, Birds Our Feathered Friends. Okay, so at the time when you are watching the video, please take one rough copy, and if you are unable to understand any point, you can note down that point in your rough copy, and in your online EVS class you can ask that point with their teacher. Okay, so let's do little recapitulation what we have done in the previous video. Okay, so in the previous video I discussed that what are the learning objective of this chapter. After studying this chapter, what are the things we are able to understand. So the learning objective of these chapters are different birds have different beaks. Okay, अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स. जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बीक्स मतलब चोंच को बोलते हैं. ठीक है, सो different birds have different beaks and this is due to their different feeding habit. Okay, next is the importance of wings and feathers. Then next objective, learning objectives is fit and class are different in different birds, and what are the material used by the birds for making their nest. So, and after that little discussion we have done that about the birds. So all of you open page number 29. Birds are indispensable part of a nature. Okay, birds are an indispensable part of nature. So what is the meaning of this? Birds are indispensable part of a nature. It means that birds are very necessary part of the nature. They also play a important role in the food chain. Is it clear? So birds are indispensable part of a nature. It is means indispensable means दे आर नेसेसरी पार्ट ऑफ द नेचर. ठीक है, जो हमारी प्रकृति है. ठीक है, इसमें बहुत सी चीजें हैं, नेचुरल लिविंग थिंग्स भी हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. ठीक है, बहुत सी चीजें हैं जो प्रेजेंट हमारे नेचर में है. तो बर्ड्स क्या है, इंपॉर्टेंट या नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर नेचर है. एंड दे आल्सो how they provide color to the nature and integral part of the food chain. They also play a very important role in the food chain. हमने ये क्यों बोला they provide color to the nature? Because student you see the birds are of different colors.
is all the birds are of the same color? No, you have seen different types of a bird with different colors. हमारे नेचर को ब्यूटीफुल कलर्स मिल रहे हैं किससे? बर्ड्स से, क्योंकि बर्ड्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं. ऑल बर्ड्स आर नॉट ऑफ द सेम कलर. ओके, नाउ यू विल डू वन एक्टिविटी. आप एक एक्टिविटी करोगे. ओके, यू विल कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ द बर्ड्स. ठीक है, आप डिफरेंट बर्ड्स की पिक्चर कलेक्ट करोगे एंड यू विल पेस्ट दिस पिक्चर इन योर क्लास वर्क कॉपी. ठीक है, you will collect, this is a small activity for you. You collect pictures of the different birds and paste that picture in your classwork copy, and below that you also write the name of that bird also. ठीक है, आप उस बर्ड का नाम भी लिखोगे. जिस बर्ड की आप पिक्चर पेस्ट करोगे, मतलब अपनी क्लासवर्क कॉपी में, उसके नेम भी लिखोगे. ठीक है, एंड इफ इट इज पॉसिबल, आपको सराउंडिंग्स में अगर बर्ड्स के फेदर्स मिलते हैं, सो यू कलेक्ट 4-5 feathers and you can also paste that feathers in your classwork copy. ठीक है, अगर बर्ड्स के फेदर सराउंडिंग्स में मिल जाते हैं, अगर ऐसा, इट इज़ नॉट वेरी कंपल्सरी, भाई अगर आपको मिल जाते हैं तो आप उनके फेदर्स को भी पेस्ट कर सकते हो अपनी क्लासवर्क कॉपी में. ठीक है, सो नाउ देखो, बर्ड्स आर एनिमल्स विद फेदर्स. ठीक है, बर्ड्स क्या एनिमल्स हैं? बर्ड्स आल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ ए एनिमल्स. प्रीवियस चैप्टर एनिमल्स अराउंड अस, so in that we discuss there are many animals which we are able to see in our surroundings. surroundings में बहुत से एनिमल्स हैं. ठीक है, देखो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो तो फॉरेस्ट में होते हैं. ठीक है, एंड दे आर आल्सो वेरी डेंजरस, बट इन आवर सराउंडिंग देयर आर मैनी एनिमल्स which you have seen. So in the same manner you have seen many different types of birds in your surroundings. आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स कहाँ मिल जाएंगे? अपने सराउंडिंग्स में. सो क्वेश्चन अराइजेज दैट ऑल द बर्ड्स आर ऑफ सेम साइज. सो आंसर इज नॉट. सम आर वेरी स्मॉल इन साइज, some are medium in size, some are large in size. So that is the reason we see different types of birds in our surroundings. Okay, and birds are the animals which can fly. They move from one place to another with the help of their wings. ठीक है, birds के wings होते हैं, जैसे हम लोग के क्या होते हैं? hands होते हैं. हम सारा काम किससे करते हैं? अपने hands से करते हैं. and we walk with our leg, we move from one place to another. So birds when they move a long distance, then they use their wings to fly from one place to another. Is it clear? So few things which we have discussed in the previous video also. Now see student, birds they have a backbone. Okay, so and their bones are hollow. देखो birds क्या है? They fly in the air, इसलिए उनका body weight जितना less होगा. ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा heavy होंगे, उनका body weight बहुत ज़्यादा होगा, तो वो उतना fly नहीं कर पाएंगे एयर में. इसलिए birds का body weight less हो, that is the reason उनकी bones जो होती हैं hollow होती हैं. They have backbone. Second point is they have backbone or next is they have backbone. Next they have backbones, and as you know that bird come in which category? Oviparous. Oviparous are, देखो बेटा, एनिमल्स के हाउ डू द एनिमल रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस. अपनी तरह के यंग वंस को जो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके दो मेथड है. ठीक है,
एक कैटेगरी है मैमल्स की और एक कैटेगरी है एग लेइंग एनिमल्स की, ठीक है। दोज एनिमल विच गिव बर्थ टू देयर यंग वन, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। इवन वी ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स के कैटेगरी में भी आते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो दे डोंट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, दे ले एग्स, ठीक है। वो क्या ले करते हैं, दे ले एग्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एंड फॉर दिस दे हैव टू मेक द नेस्ट, ठीक है। इसके लिए बर्ड्स क्या बनाते हैं, पहले नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट दे ले एग्स इन दैट नेस्ट एंड आफ्टर दैट दे सिट ऑन देयर एग्स फॉर मेनी डेज, दे हैच देयर एग एंड इन दिस मैनर द यंग वन ऑफ द बर्ड्स कम आउट फ्रॉम द एग, ठीक है। सो दिस इज द मेथड। For example we human beings, and you have observed many animals which are eating the food with their mouth, ठीक है। आपने अपने सराउंडिंग्स में इवन अपने को भी देखा होगा कि हम लोग कहाँ से फूड ईट करते हैं, माउथ से। सो इन द सेम मैनर यू हैव सीन मैनी अदर एनिमल्स इन द सराउंडिंग विच ईट फूड थ्रू देयर माउथ, विच ऑर्गन, दैट इज द माउथ। और उन सब के, हम ह्यूमन बींग्स के और उन सब एनिमल्स के माउथ में क्या होते हैं, टीथ होते हैं। इज इट क्लियर? हम एनिमल्स में और अदर एनिमल्स के माउथ में क्या होते हैं, टीथ होते हैं, ओके, टू ईट द फूड। और टीथ भी डिपेंड करते हैं कि विच टाइप ऑफ द फूड दे आर ईटिंग, वेदर दे आर हर्बीवोरस एनिमल, whether they are carnivorous animals or whether they are omnivorous animals, okay। So in the place of the, now they don't have teeth। अब जो birds होते हैं बेटा उनके teeth नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनके क्या होते हैं, beaks होते हैं, जिसे उन्हें चोंच बोलते हैं, ठीक है। So they take their food with the help of their beaks, ठीक है। उनके हमारी तरह क्या नहीं होते बेटा, teeth नहीं होते, ठीक है। birds के teeth नहीं होते। और बर्ड क्या करते हैं, एग ले करते हैं और उसमें से उनके यंग वंस आते हैं। हाँ, एक बर्ड ऐसे मैमल में एक बर्ड आता है जिसे बैट आप बोलते हो, ठीक है, जो गिव बर्थ टू देयर यंग वन, वो अंडे नहीं देता है। बैट एक ऐसा बर्ड है जो मैमल की कैटेगरी में आता है, ठीक है, जो अपने यंग वंस को बर्थ देता है, ठीक है, वो एग नहीं देता। बाकी जितने मैक्सिमम जितने बर्ड्स हैं वो सब क्या है, एग देते हैं, ठीक है। तो अब लेट डिस्कस सम पॉइंट्स। लेट डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट द बर्ड्स। Need to type this. See, first point, birds have a streamline body. Birds have a streamline body. This shape helps it to cut through the air. So if you observe the body of the bird, ठीक है, तो बर्ड की बॉडी अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो बर्ड की जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन शेप होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बर्ड,
सो इफ यू ऑब्जर्व द बॉडी ऑफ ए बर्ड, ठीक है, तो आगे से देखो उसकी शेप ऐसी होती है, फिर सेंटर में जाके थोड़ा ये ब्रॉड होती है, फिर जहां टेल वाला पोर्शन होता है फिर ये नैरो हो जाती है. सो दैट इज द रीजन बर्ड्स हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी. सो दिस पोजीशन इस बॉडी की जो शेप होती है बर्ड्स की, सो इससे क्या होता है कि बर्ड्स के बॉडी पर एयर का प्रेशर नहीं पड़ता, वो इजिली एयर, अगर एयर चल रही है फॉर एग्जांपल, बट जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो आपको नहीं जैसा फील लगता है कि आपके ऊपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, जब से कभी ऐसा बहुत तेज विंड ब्लो हो रही हो तो हमें ऐसा फील होता है ना कि कहीं हमें इतना हमारी बॉडी पे प्रेशर लग रहा है कहीं हम गिर ना जाएं. आप लोगों ने देखा होगा कि व्हेन विंड ब्लो वेरी फास्ट, जब स्ट्रोम आते हैं, तूफान आते हैं, तो आप लोग ने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स भी गिर जाती हैं ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द एयर, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द एयर. तो बर्ड्स की बॉडी क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है. देखो आगे से बर्ड की बॉडी ऐसे शेप होती है, बीच में थोड़ी ब्रॉड होती है, फिर टेल की तरफ जाते जाते फिर वो थोड़ी नैरो हो जाती है, ठीक है. So this position is known as streamline body and these shapes help it to cut through the air because birds fly in the air. बेटा birds कहाँ fly करते हैं, air में fly करते हैं. तो air में birds fly कर रहे हैं तो उनकी body की shape इस तरह होती है कि वो easily air को cut कर देते हैं, ठीक है, ठीक है. उनकी एयर को कट कर देना मीन्स उनकी बॉडी पे एयर का उतना प्रेशर नहीं लगता है, ठीक है. दे कैन इजिली फ्लाई इन द एयर, दैट इज द रीजन वो हवा में फ्लाई करते रहते हैं, ठीक है. जैसे अब एक स्टेट बिल्डिंग है, बहुत तेज हवा चल रही है, बिल्डिंग दूरी स्टेट है, अगर बहुत तेज, अगर जैसे ट्री, स्टेट ट्री है, आप लोग ने देखा होगा कि बहुत फास्ट एयर ब्लो करती है, जब तूफान आता है तो पेड़ भी गिर जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल स्टैंड स्टेट है. जब उस पर एयर का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो दैट इज द रीजन द ट्री फॉल्स डाउन. सो अब जो बर्ड्स हैं ये किस कैटेगरी के एनिमल्स हैं, दे फ्लाई इन द एयर. तो इनकी बॉडी की पोजीशन ही ऐसी है कि इस पे एयर का ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता. दे कैन ईजिली फ्लाई इन द एयर, ये बहुत ईजिली एयर में फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू देयर बॉडी. सो अब देखो बॉडी, बर्ड्स की बॉडी को से ही इंस्पायर्ड होके ह्यूमन बींग्स ने एरोप्लेन की डिस्कवरी की, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने ऑब्जर्व किया कि कैसे बर्ड्स एयर में फ्लाई करते हैं. तो उसी को ऑब्जर्व करके ड्यू टू द शेप ऑफ द स्ट्रीमलाइन बॉडी, इस शेप में अगर कोई चीज़ को उड़ाया जाए तो वो हवा में उड़ सकती है अगर किसी चीज़ की शेप ऐसी हो. तो इसी से इंस्पायर्ड होके ही ह्यूमन बींग्स ने एरोप्लेन की डिस्कवरी की. अगर आप एरोप्लेन देखोगे तो एरोप्लेन की पोजीशन भी ऐसे होती है, ठीक है. जो बर्ड्स बहुत हाइट में फ्लाइट करते हैं तो दे ओपन देयर विंग्स लाइक दिस, जिसको आप लोग ग्लाइडिंग, आपने ग्लाइडिंग देखी होगी, बहुत ऊंचाई से, फिर वो एक बहुत ऊंचाई से ग्लाइडिंग वाला रहता है इस तरह ट्रायंगुलर शेप का, ठीक है. सो बड़ी हाइट से जब जाते हैं तो एयर का नीचे से एयर का प्रेशर लगा रहता है, दैट इज द रीजन. इसके ऊपर से भी प्रेशर होता है, नीचे से भी प्रेशर होता है, दैट इज द रीजन वो क्या है, हवा में उड़ते रहते हैं. आपने ग्लाइडिंग देखी होगी, ठीक है. सो दैट इज द रीजन एरोप्लेन की जो शेप बनाई गई वो बर्ड की शेप की तरह बनाई गई, जिससे कि वो बैलेंस हो सके एयर में और उड़ सके. वैसे तो वो मैन मेड थिंग है, लेकिन उस मैन मेड थिंग को बनाने के लिए आइडिया कहाँ से आया हमारे पास, उस मैन मेड थिंग को बनाने के लिए हमारे पास आइडिया कैसे आया, बाय सीइंग द शेप ऑफ द बर्ड. बर्ड की शेप को देख के ही हमें एरोप्लेन बनाने का आइडिया आया. इज इट क्लियर? नाउ द सेकेंड पॉइंट, a bird has a very light body
very light body made up of hollow bones and thin plates. ठीक है, बर्ड हैज वेरी लाइट बॉडी, बर्ड्स के बॉडी का वेट ज्यादा नहीं होता है, ठीक है. इफ दे आर वेरी हैवी देन दे आर अनएबल टू फ्लाई. जैसे आपने बर्ड्स में भी आपने सुना होगा, देयर आर सम एनिमल विच कम इन द कैटेगरी ऑफ द बर्ड, ओके, बट दे डू नॉट फ्लाई, लाइक ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच भी क्या है, एक बर्ड है, बट इट कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकता है, ठीक है. सो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये हवा में उड़ते हैं बर्ड्स. दैट इज द रीजन, जो बर्ड्स की बॉडी का वेट जो होता है, द वेट ऑफ द बॉडी इज वेरी लेस. एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, हॉलो बोन्स हैं, ठीक है. हॉलो मीन्स अंदर से खाली, ठीक है. हड्डियां जो हैं इनकी, बर्ड्स की जो बोन्स हैं वो हॉलो बोन्स हैं, और थिन प्लेट्स हैं, किसकी, बोन्स की, बिल्कुल थिन प्लेट्स हैं. इसलिए इनका वेट जो होता है बहुत लेस होता है, बिकॉज दे हैव टू फ्लाई इन द एयर, ठीक है. उनको एयर में फ्लाई करना है, इसलिए उनका बॉडी वेट क्या होगा, लेस होगा. इज इट क्लियर? दैट इज द रीजन देयर बॉडी वेट इज लेस. एंड हाउ, देखो हमारी बॉडी का जो वेट होता है, सबसे ज़्यादा वेट किसका होता है, हमारी हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं, हमारी बोन्स का, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है. सो इसका बहुत वेट है, ठीक है. सो इन द नाउ these are the animals which can fly in the air, so that is the reason their body weight should be less. अब ये तो हमारी तरह वॉक करेंगे नहीं, ठीक है. ऐसा नहीं है कि फिट पे मूव नहीं करते हैं बर्ड्स, बट दे कांट मूव वेरी फास्ट. दे यूज देयर फिट, दे यूज अपने फिट को यूज करते हैं फॉर द मूवमेंट. लेकिन व्हेन दे हैव टू कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस from one tree to another tree they have to move, then they move by with the help of their wings. तो वो किससे मूव करते हैं, विंग्स से मूव करते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं है कि फिट की मूवमेंट नहीं होती. आप लोग ने देखा होगा कई बार बर्ड्स को स्लोली व्हेन दे आर ईटिंग द फूड, जब वो फूड ईट करते हैं, दे आर सिटिंग ऑन द ट्री, तो दे मूव विद देयर फिट आल्सो. बट व्हेन दे मूव लॉन्ग डिस्टेंस of one tree to another tree, then they fly with the help of their wings. तब वो एक ट्री से दूसरी ट्री, और they fly over any building, so that time they use their wings, okay. तो that is the reason जो इनकी बोन्स होती हैं, बहुत ही, इनकी बोन्स क्या होती हैं, हॉलो होती हैं, ठीक है. अंदर से खोखली होती हैं, ठीक है. अंदर से क्या, खोखली होती हैं, हॉलो होती हैं, खाली होती हैं अंदर से, इसलिए इसका बॉडी वेट क्या होता है, लेस होता है. इनकी बोन्स का बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता, थिन बोन प्लेट्स होती हैं, बहुत थिन, बहुत पतला होता है, ठीक है. तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट. ए बर्ड हैज़ वेरी लाइट बॉडी मेड ऑफ हॉलो बोन्स, ठीक है, मेड ऑफ हॉलो बोन्स एंड थिन प्लेट्स, ठीक है. नेक्स्ट है, now how the wings are attached to the body of the bird. So their muscles are very strong. wings किससे अटैच है, जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है. अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होती तो हमारी मूवमेंट नहीं होती, ठीक है. अवर होल बॉडी, जो हमारी बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क है, जिसको हम लोग स्केलेटन बोलते हैं, जो किससे बना है, बोन से बना है, ठीक है. सो वी कैन मूव, वी कैन रन. हाउ दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द मसल्स, क्योंकि मसल्स ही हमारे बोन्स की मूवमेंट कराती हैं. और ये कहाँ पे मूवमेंट कराती हैं, हमारे बोन्स की मूवमेंट कहाँ होती है, जहाँ पे जॉइंट्स हैं. जैसे आपका ये हैंड है, ठीक है. तो देखो ये हैंड है, अब देखो इसे हम फोल्ड भी कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये जॉइंट है. अगर यहाँ जॉइंट नहीं होता तो हमारा हैंड हमेशा स्ट्रेट रहता है. अगर हमारे
लेग्स में अगर नी नहीं होती, आप लोग रोज योगा में नी वाली एक्सरसाइज करते हो, नी को टर्न करते हो, फोल्ड करते हो, एंकल को, अगर ये जॉइंट नहीं होते तो आपका लेग हमेशा स्ट्रेट रहता। तो ऐसे में हम लोग मूवमेंट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो हमारी बॉडी की जो पूरी मूवमेंट कराती हैं वो कौन कराती हैं? मसल्स, क्योंकि मसल्स क्या है? बोन से अटैच होती हैं। ठीक है, मसल बोन से अटैच होती हैं। इन द सेम मैनर जितने भी बर्ड्स हैं, सो उनके विंग्स स्ट्रॉन्ग मसल से अटैच हैं। ये मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। दैट इज द रीजन दे कैन फ्लाई। ओके, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। The wings are attached. The wings are attached. The wings are attached to the body. विंग्स बॉडी से कैसे अटैच होते हैं? द विंग्स आर अटैच टू द बॉडी with the help of powerful muscles. आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने अपने पे एक एग्जांपल बताया कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी की, हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स कैसे पॉसिबल हैं? ड्यू टू द मसल्स। ठीक है, क्योंकि ये मसल्स क्या है? बोन्स के संग अटैच हैं। ठीक है, बोन्स के संग अटैच हैं, और मसल्स दो ही फंक्शन करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन, जैसे आप अपने हैंड को ऐसे ला रहे हो, फोल्ड कर रहे हो, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और आप ऐसे स्ट्रेट कर रहे हो तो रिलैक्सेशन। तो यही मसल्स की यही दो मूवमेंट होती है, और दैट इज द रीजन हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स कैसे मूव करते हैं? क्योंकि वो मसल से अटैच हैं। इन द सेम मैनर स्टूडेंट, द विंग्स आर अटैच टू द बॉडी, बर्ड के बॉडी से, विद द हेल्प ऑफ ए पावरफुल मसल्स, और दैट इज द रीजन विंग्स की, इसीलिए जो बर्ड्स हैं दे कैन फ्लाई, क्योंकि जब वो लोग फ्लाई करते हैं, तो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो फर्दर डिस्कस करेंगे, जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड, वो पंखों को अप ले जाते हैं, डाउन करते हैं, अप ले जाते हैं, डाउन करते हैं, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट्स होती हैं बर्ड्स में। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती हैं? मसल्स की वजह से होती हैं। ये मूवमेंट्स किसकी वजह से हो रही हैं? मसल्स की वजह से हो रही हैं। इज इट क्लियर? अब देखो, विंग्स आर कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर। दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी जब हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे फेदर्स, काइंड ऑफ फेदर, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दे। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फेदर। बर्ड्स के कितने फेदर्स होते हैं? 3 टाइप्स। एक बॉडी फेदर है, एक फ्लाइट फेदर है, और एक डाउन फेदर है। ठीक है, एक डाउन फेदर है, फ्लाइट फेदर है, और बॉडी फेदर है। दिस वी विल डिस्कस फर्दर, वी विल डिस्कस दिस। ओके, तो विंग्स आर कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स। ठीक है, बर्ड के बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए फेदर होते हैं। डाउन फेदर भी होता है, एक फ्लाइट फेदर होता है, और एक डाउन फेदर, फ्लाइट फेदर और बॉडी फेदर। इज इट क्लियर? सो जब ये फेदर्स को हम डिफरेंट काइंड ऑफ फेदर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, देन आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग इन डिटेल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन these types of feather. And another important thing is that बेटा जब बर्ड मूव करता है, मतलब फ्लाई करता है, एट द टाइम हाउ वी चेंज द डायरेक्शन। सो बर्ड्स चेंज द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ टेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था, when the bird is flying, then how he change the direction. तो bird change the direction with the help of the टेल, क्योंकि सारे बर्ड्स की टेल्स होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।